تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود محمد و آل محمد کے لیے۔ تمام دیکھنے والوں کو تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ آج ہم اپنے چینل کی ایک باقاعدہ پہلی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ ہم لاہور کی آزاداری پہ جو سرچ کر رہے تھے کہ اس لاہور کی آزاداری کہاں سے شروع ہوئی، تو جو دو نام بڑے ہیں، ایک نثار حویلی کا اور کربلا گام شاہ کا، یہ بہت ہی قدیم آزاداری ہے۔ لیکن اس میں ایک سب سے جو قدیم آزاداری جو ہم نے سرچ کی ہمیں ملی، جو گوگل پہ بھی ہے، اس میں ڈان نیوز کا، جی ٹی وی کا چینل بھی آپ اس دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ، وہ اس امام بارگاہ کا ہمیں پتہ چلا۔ یہ امام بارگاہ نام ہے امام بارگاہ ماتم سرائے۔ اس کی جو ایک تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 500-550 سال پہلے ایک دائم علی کربلائی صاحب کشمیری تاجر تھے۔ وہ ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ جو ہے نا لاہور میں اس مقام پہ جائیں، وہاں آزاداری بہت کم ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنے خواب کی بشارت کے سلسلے میں ادھر پہنچے، تو انہوں نے خیمے لگا کر ادھر آزاداری شروع کی اور ادھر ہی مستقل قیام پذیر ہو گئے۔ یہ جو علم پاک ہے یہ بہت ہی قدیمی ہے، اور اس میں جمعرات والے دن ادھر منتیں بھی مانگی جاتی ہیں، اور ادھر سے مولا کا آپ دیکھیں گے جمعرات والے دن اس علم پاک میں بہت ہی جو ہے نا جلال والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہاں لاہور سے اور بیرون ملک سے بھی لوگ جو ہے منت ماننے کے لیے آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس امام بارگاہ میں ایک 9 اور 10 محرم کو چھواروں والی جو ایک منت ہے، وہ ہر سال باہر کے ملک جو ہے نا لوگ وہ بھی لینے جاتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ کا مرکزی تبوت پاک کی زیارت ہے۔ دائم علی کشمیری صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں آزاداری شروع کی، اور پھر ادھر ہی اسی امام بارگاہ میں قیام کیا، اور ادھر ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کی قبر بھی اسی امام بارگاہ میں ہے، اور ان کے بعد جو سلسلہ ہے یہ سید جعفر علی نقوی صاحب ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ یہ لاہور کا 530 سال پرانا امام بارگاہ ہے جس کی ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں، اور یہاں بہت ہی قدیم آزاداری برپا ہوتی ہے۔ بابا جی، ہم آپ کے پاس ہیں اس امام بارگاہ کی جو 500 سال کی تاریخ ہے، آپ تھوڑی سی بتائیں کہ لاہور کا یہ پہلا امام بارگاہ کس طرح وقف ہوا، اور 500 سال سے کس طرح ادھر آزاداری ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یہ جگہ سارا میدان تھا اور چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنی ہوئی تھی۔ کشمیر سے ایک قافلہ آیا جن کو وہاں خواب میں کہا گیا کہ لاہور میں آزاداری نہیں ہو رہی، وہاں جا کے آزاداری کرو۔ یہاں آ کے انہوں نے اپنی جھگیاں ڈالی اور آزاداری شروع کر دی۔ دائم کربلائی نامی شخص جو قافلے کا سالار تھا، اس نے یہاں سے آزاداری شروع کی۔ اس کی نسل در نسل آزاداری ہوتی چلی آئی، جو کہ اب تک ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماتم سرائے اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ نارووال سے جتنے بھی زائرین نظر آتے تھے، یہاں ان کو کھانا فری دیا جاتا تھا اور رہائش فری ہوتی تھی۔ سرائے مطلب ماتم سرائے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اسٹے کرنے کا۔ ہاں، اسٹے کرنے کی، رہائش فری تھی، کھانا فری تھا۔ اور مجالس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے کشمیری زبان میں مجالس ہوتی تھی، ذاکرین فری پڑھتے تھے، کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ اب جدید دور آ گیا، عالم صاحب آ گئے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے، میں اس کا متولی چلا رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے میری والدہ تھیں، اس سے پہلے میری والدہ کی دادی تھیں، اس سے پہلے ان کے والد تھے، اسی طرح متولی شپ چلتی آ رہی ہیں۔ آزاداری کا آغاز جو ہے وہ اس امام بارگاہ سے شروع ہوا۔ تمام زیارتیں، خاص طور پہ 10ویں محرم کی زیارت
यहाँ 9वीं की रात आती है, यहाँ से फिर तैयार होके बाहर बाज़ार में आती है। और ये आज़ाद हमें हासिल है कि हम इस पुरानी इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं और ख़िदमत कर रहे हैं आज़ादारों की भी। और रिसेंटली एक और प्लाट लिया है, वो भी आज़ादारी के लिए वक्फ़ किया है, बारगाह को वसी करने के लिए। और दुआ करें कि एक और भी 2-3 हैं वो भी हमें मिल जाएं ताकि इमाम बारगाह और वास्ता हो जाए, कदीमी इमाम बारगाह और वसी हो जाए। यहाँ हमने ज़ायरीन के लिए लैट्रीनें बनवाई हैं और तमाम मोची दरवाज़ा को आगाह कर दिया है कि यहाँ देगें पकवाएँ फ्री, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। सारा बारगाह की देगें हैं, सारा हाँ जी, हर चीज़। जस्ट उन्होंने सामान लाना है और हाँ उनको जी, पक्की देग मिल हाँ जी, बिल्कुल। माशाल्लाह और कोई मुआवजा नहीं लेना उनसे। माशाल्लाह। मकसद है आज़ादारी को बढ़ाना, इमाम के कारनामे को उजागर करना जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम की खातिर। और दुआ भी है कि हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक भी मिले, सबको, सारे आलम इस्लाम को और यहाँ के ज़ायरीन को भी ख़ास तौर पे, जो बेचारे अपने जेब काट कर मामूली पैसे लगा के भी अदादारी करते हैं अपने अपने घर में। तो सैयद जान, इधर जो मजालिस अदा हो रही हैं उस वो बता दें कौन कौन वो होती हैं। एक तो पहली रात को, मुहर्रम की पहली रात, हाँ, लेडीज़ मजलिस होती है। फिर 10 सफ़र से लेके 19 सफ़र तक 10 मजालिस औरतों की होती है। और ये ज़ियारत जो रखी हुई है ये बाहर निकाली जाती है एक रात के लिए। उसके बाद यहाँ से एक 5 सफ़र को एक अलम बरामद होता है जो बाज़ार से होता हुआ वापस आता है। ठीक है, अलम पाक बरामद होता है। हाँ, और बाहर से दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से गुजर कर दूसरे रास्ते से वापस आता है। और खुलूस से दिल से मातमदारी होती है, दौरो दीवार कांप जाते हैं मातमदारी। और फिर एक 19 सफ़र को एक ज़ियारत निकलती है जुलजना की, जो अपने ख़ास रोड पे चलती हुई वापस आती है 4 बजे। बाबा जी, जो अलम पाक किया है, मुझे शहरयार भाई बता रहे थे कि काफ़ी मुरादें पूरी होती हैं। और जुमेरात को अलम पाक पे जलाल की कैफियत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उस पर थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से लोग आते हैं इधर, मानते हैं या जिनकी पूरी होती है। अलम पे भी आते हैं, वाली ज़ियारत मशहूर है इधर की। अलम पे भी आते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ आज से 100 साल पहले पानी भी जलता रहा है दियों, इधर इस इमाम बारगाह में लोग आते थे, अज़ादार पानी डालते थे दियों में, वो जलता है माशाल्लाह। और ये अलम सामने था, यहाँ बेअदबी होती थी, इसलिए मेरे वालिद ने ये अलम इधर लगवाया। और 9वीं की रात को यहाँ एक शमादान पड़ा होता है बहुत बड़ा, जो कि बहुत कदीमी है। उसमें हम खजूरें डालते हैं, छुआरे जिनको कहते हैं। वो हर मुराद के लिए उठाए जाते हैं। ये इस इमाम बारगाह की एक मशहूर रवायत है। बाहर के मुल्क से भी लोग आते हैं? हाँ जी, बाहर से भी आते हैं, बाहर जाते भी हैं, मंगवाते भी हैं डाक के ज़रिए। माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे औलाद के लिए, जिनकी औलाद नरीना हाँ, नहीं है, नहीं है, हाँ जी, छुआरे उनके लिए। हाँ जी, ये इस इमाम बारगाह की एक ख़ास रवायत है। और दूसरी रवायत है कि जो इस इमाम बारगाह के अंदर आएगा उसकी इज़्ज़त एहतराम करना हम पे वाजिब है। बेशक जी, वो तो मैंने देख लिया। हम उनके खादम हैं, माशाल्लाह। कोई भी हो, किसी फ़िक़ा का भी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, वाबी, सुन्नी, कोई तो फ़र्क नहीं रखना। हम जो तबरक बांटते हैं पहले अपने साथ वाले घर से शुरू करते हैं बांटना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने सारा साल यहाँ रहना है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ तावन करते हैं, हम उनके साथ तावन करते हैं। मेन मकसद है इस्लाम में भी इखलाक से पेश आना है। हर एक की इज़्ज़त करनी है। ये नहीं कि ये बड़ा है इसकी करनी है, छोटा है इसकी नहीं करनी, बराबर का सलूक रखना है। बाबा जी, आप 500 साल से आपका ख़ानदान मौला मज़लूम करबला की आज़ादारी बर्पा करवा रहा है, तो कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश हो मौला से कि वो आपकी पूरी हो, या आप चाहते हो कि जो आखिरी ख्वाहिश है, या कोई भी ऐसी कि मौला ये आपकी। हाँ जी, बिल्कुल ख्वाहिश है
पहले तो ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़ें और अफसर बने, वो तो पूरी हो गई। माशाल्लाह सारे अफसर हैं, सब MM में हैं। दूसरी ख्वाहिश थी ये प्लाट मिल जाए, इधर रास्ता निकला है, जो कि कभी पहले था, वो भी पूरी हो गई। अब एक लास्ट ख्वाहिश है ज़िंदगी की, वो भी मौला ज़रूर पूरी करेंगे कि ये आगे तक जाए, गली तक इमाम बारगाह वसी हो, और इधर ये 2 फुट गली और पीछे हो जाए, और यहाँ रोज़ लंगर चले। माशाल्लाह इमाम का लंगर इमाम हुसैन की याद ताज़ा करेगा और हज़रत मुतलब की याद ताज़ा करेगा, जिनका सबसे बड़ा लंगर था अरब में। माशाल्लाह ये ख्वाहिश है। ठीक हो। तो बाबा जी अगर ये मरकज़ी इमाम बारगाह कदीमी इमाम बारगाह 530 साल से पुराना है, तो जो फिर ये मैं कह सकता हूँ कि जो दाइम करबलाई साहब थे वो लाहौर के पहले अदादार कह लें या पहले शिया कह लें, ये हक बजानिब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अदादारी का आगाज़ उन्होंने किया है, उनकी कब्र भी इधर है, इसी इमाम बारगाह। इसी मामर के अंदर है। ठीक है, मतलब वो ये अदाज है उनका, बहुत बड़ा अदाज है कि अपने तमाम रिश्ते खूनी रिश्तेदारों को छोड़कर आ गए। छोड़कर आ गए। और आप बता रहे थे कि इसी नाम से एक इमाम बारगाह उधर भी है, मकबूजा कश्मीर में भी है। कश्मीर में जो इंडिया के पास है। हाँ जी, ठीक है, उधर भी इसी नाम से इमाम हाँ बारगाह जी, उन्होंने बनाया होगा। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा उनका आज़ाद है जो हाँ जी। आप लेके चल रहे हैं मौला आपकी। और उनकी ख्वाहिश थी, कब्र इसलिए उनकी यहाँ बनाई गई, उनकी ख्वाहिश थी कि मातमदारों के कदम मेरी कब्र के ऊपर से आएँ, गुजरें, मेरी कब्र से ऊपर से गुजरें, या हुसैन करते, मुझे अंदर आवाज़ आए अदादारी की, मातमदारी की, इसलिए कब्र इधर बनाई गई। इस्लाम मदद आप से मैंने सैयद जाफ़र अली शाह साहब जो मतवली हैं इमाम बारगाह मातम सराय के, उनके तासुरात आपको पेश किए हैं। ये इमाम बारगाह 530 साल पुराना है, जो लाहौर में पहली मजलिस से पहले अज़ादार हुसैन और पहला इमाम बारगाह लाहौर में बना, वो ये है। जो मरकज़ी हैसियत है वो करबला गामे शाह और नसार हवेली मुबारक हवेली के पास है। लेकिन अगर आप देखें कि सबसे पुराना जो पहली मजलिस, पहला नाम मौला हुसैन का गिरिया मातमदारी और मजलिस अदा हुई, वो इसी जगह हुई। और बाबा जी को मौला सलामत रखे। और बहुत ही पहली मुलाकात थी इनके साथ, लेकिन मुझे लगा नहीं है कि ये मेरी पहली मुलाकात है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं किसी अपने बुज़ुर्गों के पास बैठा हुआ। और सैयद की यही विश है, यही उनकी ख्वाहिश है कि इस बारगाह को वुसअत मिले और यहाँ जो है ना मौला हुसैन का लंगर सारा साल चलता रहे। मौला इनकी और इनके बच्चों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और दिन दुगनी रात चुगनी और अज़ाए हुसैन को मज़ीद वुसअत देने की तौफ़ीक़ात अता करें। या अली इस्लाम।